solving the exercise question answers of chapter 9 and we are discussing numericals. हमने exercise question start कर दिए थे. In text question we have done and I am taking some numerical of the exercise question. Right. So next question of the exercise question is an automobile कोई vehicle है. Vehicle has a mass of 1500 mass है kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square. स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ हमारे पास है, हमें गिवन है मास 1500, मास हमें गिवन है and road into negative acceleration. The value of A is given and what we have to find out the vehicle have to be stopped with negative acceleration. What must be the force? We have to calculate the force. So first solution. What is the given in this question? First given mass n is given 1500 kg. मास की SI यूनिट kg होती है 1500 kg and next is acceleration नेगेटिव है, साइन नेगेटिव का आएगा बिकॉज नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो हमें साइन किसका लगाना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन. राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन 1.7. नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना है 1.7. राइट स्टूडेंट्स 1.7 meter second square. Right, and we have to find out the F. What is the formula of force? The formula of the force is ma equal, what is the mass 1500 kg and acceleration minus 1.7 meter per second square. So 150 multiply 1.7 माइनस होगा 0, 0 से 0 कैंसिल and 150 multiply 70. So the answer is 2550 minus kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड न्यूटन. फोर्स को हम किस में लिख सकते हैं, न्यूटन में लिख सकते हैं. सो दिस इज द आंसर. वेरी इजी न्यूमेरिकल स्टूडेंट. इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल फोर्स एंड लो मोशन में आपको आएंगे. इसमें आपको जो दिया हुआ है वो हमें पहले लिख लेना है, जो फाइंड आउट करना है वो नेक्स्ट है. राइट. सॉल्यूशन हो गया हमारा. मास हमें गिवन है 1500, एक्सेलरेशन 1.7, फोर्स हमें निकालना है. सो F इक्वल्स टू ma. राइट. 1500 kg मल्टीप्लाई 1.7, 1500 मल्टीप्लाई 1.7 डेसिमल से कर 0, 0 से 0 कैंसिल. 150 मल्टीप्लाई 70, 2550 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 2550 आंसर. So I hope you all are understood. Next I am taking another example. First you note down everyone this. Everyone note down this. So student, next is question number 13 from your NCERT. Question number 13 student is a hockey ball. Question number 13 open your NCERT book. Question number 13 of your NCERT book. A hockey ball of mass 200 gram. First we have to write that what the value given in our book. Solution. Complete question in your book. So I have not written here. Complete question in your book. Solution is, first mass is given 200 gram. 200 gram and what is the SI unit of mass? Mass SI unit is kg. So we have to convert mass into gram to kg. So 200 divided by 1000. So 0.2 kg. What is the answer? 0.2 kg mass. Traveling at 10 meter per second inverse is struck by the hockey stick and to return it along the original path with a velocity at 5 meter per second. So student, here is
initial velocity is u 10 meter per second inverse, and it return it along its original path, so velocity is 5. So final velocity is v minus 5, because it is return अपोजिट पाथ है, वापस रिटर्न हो रहा है, सो साइन आएगा नेगेटिव, बिकॉज डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है. कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम, हमें मोमेंटम में चेंज निकालना है, तो पहले हमें इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करना होगा. मोशन हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड ऑन द, तो स्टूडेंट हमें मास गिवन है, क्लियर, हमें यहाँ पे मास गिवन है 2 kg एंड इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी गिवन है. सो हमें सबसे पहले मोमेंटम निकालना है, देन मोमेंटम में क्या क्या चेंजेस आया है. सो p फर्स्ट हम निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम p इक्वल्स टू m u. m कितना है हमारे पास 0.2 kg एंड u कितना है इनिशियल u 10 मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स. सो व्हाट इज द आंसर, आप ऐसे रिमूव करेंगे तो 10 कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा 2 kg मीटर सेकेंड इनवर्स. क्लियर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम, मोमेंटम इज m u, इनिशियल है 10 है, इनिशियल 10 हमारे पास आ गया 2. नेक्स्ट है फाइनल मोमेंटम, देन अगेन p v, m कितना है हमारे पास 0.2, v कितना है अपने पास -5, सो 5 2 जा 10, डेसिमल है यहाँ पे, या आप ऐसे कर सकते हैं 2 5 जा 10, 5 कैंसिल, -1 मीटर सेकेंड इनवर्स. फाइनल मोमेंटम कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइनल मोमेंटम आ गया है हमारे पास -1. अब हमें क्वेश्चन कह रहा है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में हमें चेंज बताया, तो चेंज कब निकलेगा स्टूडेंट, चेंज निकलेगा फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. क्लियर, फाइनल कितना है -1 और इनिशियल कितना है आपका, इनिशियल कितना है आपके पास -10. क्लियर, तो -10 में इनिशियल हमारे पास आया था -2. ठीक है, सो माइनस एंड प्लस होता है, सो -3. व्हाट इज द चेंज ऑफ मोमेंटम, -3 kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स, दैट इज द kg, that is the change in momentum, right students, I hope you all are understood this change in momentum. हमें पूछा गया था, हमें फाइनल दिया गया है, इनिशियल दिया गया है, फाइनल एंड इनिशियल, और कितना चेंज आया उनके मोमेंटम में वो पूछा गया था. सो आंसर हमारे पास आ गया -3, u 10 था, v हमारे पास -5 है, p का फॉर्मूला होता है mu, फाइनल मोमेंटम mv, फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दी हमने, 2 kg आ गया, यहाँ पे -1 kg. चेंज निकालना है फाइनल माइनस इनिशियल, -1 and -2 -3, दैट इज द आंसर. सो नोट डाउन इन